Hello everyone, welcome to J Prakash HR Training Talk Show. Friends, today our special guest is Miss Divi Fani. She is a postgraduate and she is a very talented HR professional. At present, she is working in one IT company. Earlier, she had a work experience in TCS. She worked in one of the very renowned and famous organization, MNC, you can say multinational company, that is the Tata Consultancy Services. Very talented guest today is in our show, and she is going to discuss a lot of things with all of you. Means especially she is going to interact with me, and between that she will share a lot of meaningful information, and I believe that these all information is going to be very handy to all HR professionals. So now I'm coming to the Divi. Divi, welcome to J Prakash HR Training Talk Show. Divi, first question which I'm going to ask to you, that you please tell me about your qualification, highest qualification, and at present what are you doing? Means your current work profile. Yes, sir. So I have completed my PGDM postgraduate diploma in management in the year 2019 from Institute of Engineering and Management in Kolkata. And then I have joined, like before passing out my PGDM course, I have already got an opportunity in Capgemini. There I worked for 7 months in the HR process. Sorry, sir. And then I have joined Owndays India, which is a retail optical chain. And it's a Japanese eyewear brand. And we are here in a joint venture with GKB Opticals. So here in this company, since 2 years and 1 month, I am working as the HR executive, and I mainly look after the recruitment part. And other than the recruitment part, I also look after few of the HR generalist activities as well. And also I look after the admin part also of the company. So my designation is HR executive, but like you can call me as HR executive as well as admin. Okay, great. How you choose HR as a career? What happened? How you decided? Because numbers of options you have, but then also you choose HR as a career, choosing HR as a career. So please tell me about that. Yes, sir. So, firstly, after my graduation, after 1 year of my graduation, I have joined a TCS passport office. And there, when I went for the interview, and even while leaving the company, when I have given the exit interview, and also during the course of my job, I got to interact with the HR professionals from TCS. And I really liked the job role they were performing, like interacting with new people, then assessing them that whether they will be the appropriate person for the appropriate positions or not. I thought that this is this apparently does not look a challenging role, but in a long process it's a challenging kind of a thing, because selecting the right person for the right position and at the right time is not very easy, because Exactly. in this competitive market, talents are you will be getting a lot of talents, but as it is a competitive market, like you have to convince the talent that why he will be joining TCS and not any other IT company like Cognizant or Capgemini. So I found this thing to be very interesting as well. So that has made me think that like if I'll be going for a higher management course, then I would opt for HR. This was one of the reason. And another reason was that I have never, like I did not had much inclination towards finance or any other stream. And as per my nature, I felt that going to the marketing department will you have to be a lot extrovert for being in the marketing department, and it would be a lot hectic. So as per my nature, I thought that HR would be a good option for me. So this was the second reason for which I have selected HR. One thing I want to just say to all of you as per the talk with Devi, that
you know, because I interact with the numbers of freshers, Devi, and they sometimes they have a confusion that sir HR का career मेरे लिए सही रहेगा कि नहीं, मुझे HR की career choose करनी है. तो so as per her experience which she told that you know इन्होंने एक तो देखा जो इनको HR रोल मॉडल की तरह उनको लगा, उनको काफी इंस्पायर किया वहां के HR प्रोफेशनल. नो डाउट TCS इट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन. तो वहां पे जो भी HR प्रोफेशनल्स काम करेंगे दे आर कंप्लीटली पॉलिश्ड. बट सेकंड थिंग इन्होंने बोला वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बोला दैट शी टोल्ड दैट शी फर्स्ट जज्ड हर नेचर दैट हर नेचर एंड आई सी रियलाइज्ड दैट उनका नेचर जो है वो इस जॉब के लिए बहुत ही परफेक्ट मैच कर रहा है. मींस इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी. तो सो गाइस वन थिंग्स आल्सो यू हैव टू सी दैट जब भी आप इस डोमेन में आना चाहते हैं, अच्छा प्रोफेशन में आना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपना खुद की पर्सनालिटी को भी जज करनी पड़ेगी. लाइक दीदी जस्ट हर पर्सनालिटी. इन्होंने रियलाइज किया जो कि हाँ जो मेरा एक मार्केटिंग में एक्सट्रोवर्ट नेचर चाहिए लेकिन यहाँ पे इंट्रोवर्ट है, तो मेरे लिए परफेक्ट पोजीशन है, यहाँ पे मैं ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ. सी इवन डूइंग वेल. नाउ दीदी हम आगे आते हैं. अब एक और कंफ्यूजन होता है बहुत सारे फ्रेशर्स या जो वर्किंग एक्सपीरियंस है खासकर रिक्रूटर डोमेन में जो काम करते हैं, एट वन स्टेज वो चाहते हैं जो अब मैं पेरोल की तरफ जाऊं, मुझे पेरोल की कैरियर चॉइस करनी है, अब मैं पेरोल सीखना चाहता हूं, लर्न करना चाहता हूं. तो चूंकि आप भी आई फॉर वेस्ट में पेरोल कॉम्प्लायंस की ट्रेनिंग कर रही है, तो आप कैसे, और मुझे लग रहा है ये इन्फॉर्मेशन जो अभी जो हम बातें करेंगे ये बहुत ज्यादा हैंडी होने जा रहा है बहुत सारे लोगों के लिए जिनके दिमाग में अभी कंफ्यूजन चल रहा है पेरोल एंड कॉम्प्लायंस की कब ट्रेनिंग करनी है, किस समय सही रहेगा ट्रेनिंग करना, क्या अभी हमारे लिए सही है कि नहीं, या आगे क्या स्कोप है इसका, कैसे मैं इसको यूटिलाइज कर पाऊंगा. तो सो वन क्वेश्चन व्हिच आई एम गोइंग टू आस्क यू, आई फॉर बेस्ट में कैसे ज्वाइन की, कैसे ये चीजें आपके जहन में आया और कब आपने प्लान किया, और कब एक जो आपको लगा जब मुझे पेरोल कोर्स करनी चाहिए, तो प्लीज इसके बारे में. हाँ सर. एक्चुअली मेरे लिए पहला चीज़ जो था आफ्टर कंप्लीटिंग माय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट वो था कि मुझको पहले एक्सपीरियंस गैदर करना होगा कोर HR में. वो मेरा पहला पॉइंट था कि जो कुछ भी हो जाए, रिक्रूटमेंट हो या फिर कुछ भी डोमेन हो, क्योंकि HR एक बहुत बड़ा डोमेन है, तो उसमें बहुत सारा एक्टिविटीज़ रहता है. तो मुझको लगा कि लाइक बी इट एनी पार्ट, मुझको एक्सपीरियंस पहले थोड़ा सा गैदर करना होगा. तो मैंने इसीलिए जब ये अपॉर्चुनिटी मुझको मिला रिक्रूटमेंट में तो मैं ज्वाइन की. और उसके बाद I started working into recruitment and also few of the HR generalist activities भी मैं करती हूँ. जैसे कि अगर कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी के किसी काम से अगर बाहर जाए तो फिर उन लोगों का रीइंबर्समेंट करवाना एंड एक्सेट्रा. मैं कुछ एक्स्ट्रा कुछ चीज़ भी करती हूँ अदर देन रिक्रूटमेंट. तो रिक्रूटमेंट ही मैं अभी तक नहीं बोलूँगी कि मैं कम्प्लीटली सीख गई हूँ रिक्रूटमेंट, बिकॉज एज आई हैव टोल्ड रिक्रूटमेंट इज़ टफ. मैं टफ इन द सेंस इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि रिक्रूटमेंट इज़ नॉट ओनली अबाउट कि आप किसी एम्प्लॉय के CV को देखो, उसको इंटरव्यू लो और सिलेक्ट कर लो, और या फिर अगर सिलेक्ट नहीं हुआ तो फिर रिजेक्ट कर लो. ये सिर्फ इन तीनों स्टेप्स में ही नहीं होता है. बहुत बहुत सारा चैलेंजेस आता है. जैसे कि ऐसा भी हुआ है कि मान लो कि कोई एम्प्लॉय नोटिस पीरियड हम लोग ने कोई एम्प्लॉय छोड़ के गया है तो हम लोगों को रिप्लेसमेंट देखना होगा. तो ऑलरेडी 30 डेज में 26 डेज हो गया है, मतलब आफ्टर 4 डेज द न्यू एम्प्लॉय इज गोइंग टू ज्वाइन. बट बिफोर 4 डेज वो न्यू एम्प्लॉय हम लोगों को बता रहा है कि जिस कंपनी से हम लोग उसको हायर कर रहे हैं वो उसको रिटेन कर लिया है, उससे भी हम लोग से भी ज़्यादा हाइक देके या फिर कोई पोजीशन थोड़ा बढ़ा के. तो ये सब ये एक हुआ. ऐसा कुछ कुछ चैलेंजेस रहता है रिक्रूटमेंट में भी. तो इसीलिए मैं अब नहीं बोलूँगी कि रिक्रूटमेंट मैंने पूरा सीख लिया है, बट हाँ मुझको अभी थोड़ा भी एक बहुत लर्निंग तो फेज चल रहा है आपके लिए, राइट? अभी भी आप और हाँ एक हाँ चीज हाँ सर. सबसे बड़ी बात है दीदी, वन थिंग आई टेल यू दैट आप यू नो कोई कभी भी किसी भी डोमेन में परफेक्ट कभी नहीं होता. तो हाँ ये एक अच्छे प्रोफेशनल की साइन हाँ है क्योंकि वो हमेशा बोलते हैं. मैं अभी अमिताभ बच्चन बहुत ही बड़े एक्टर है,
लेकिन बोले अभी भी मैं एक्टिंग सीख रहा हूँ. So this is a great thing. This is a great thing for you that you are telling that right now still you are learning. You haven't do more than 2 years or maybe that उससे ज्यादा experience आपके पास है. लेकिन उसके बाद भी आप अभी भी बता रहे हो still you are learning. So this is a very great thing. ये तो एक अच्छी प्रोफेशनल की एक साइन है जो आपके पास है. तो ये आपकी हम्बलनेस है और बहुत बड़ी बात है. तो आई रियली रिस्पेक्ट यू फॉर दिस योर एटीट्यूड. नाउ दीदी एक चीज मुझे बताइए, जो आप आई फॉर बेस्ट कैसे ज्वाइन की, आप किस तरीके से पेरोल कोर्स यहाँ पे ज्वाइन की, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए. ऐसा लगा कि अगर मैं रिक्रूटमेंट कर पा रही हूँ तो फिर मुझको दूसरा जो सेगमेंट्स है एचआर का वो भी मुझको जानना चाहिए. मतलब मैं अगर एक डोमेन में काम कर रही हूँ सो आई शुड हैव द नॉलेज ऑफ द होल डोमेन, क्योंकि पूरा डोमेन का कुछ ना कुछ पार्ट कहीं पे तो आपको लग ही जाएगा. सही जैसे बात है. कि पीएफ, ईएसआई, करेक्ट. ग्रेजुइटी ये पेरोल में है, और अगर जब मैं कोई एम्प्लॉय को ऑफर लेटर दूंगी तो या फिर उसमें भी हमको अपॉइंटमेंट डील लेटर करनी दूंगी. पड़ती है. करेक्ट. हाँ सर, हाँ सर. तो उनमें भी उन लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है ये समझने के लिए कि मेरा यहाँ पे कितना डिडक्शन हो रहा है, मेरा ग्रॉस सैलरी ऐसे कैसे निकला, ग्रॉस सैलरी इतना हो के मुझको टेक होम में इतना कम क्यों मिल रहा है. तो ये सब क्वेश्चन अगर मुझको पेरोल का अगर नॉलेज अगर नहीं रहेगा मुझे, तो फिर मैं उन लोगों को क्लियर नहीं बता पाऊंगी. तो इससे अगर एम्प्लॉय आ भी जाएगा तो फिर ग्रीवांस शुरू होगा. तो उससे बिल्कुल. मतलब मेरा काम भी कंप्लीट नहीं हो रहा है. तो ये एक पॉइंट था मेरे लिए. और दूसरा पॉइंट ये भी था कि मतलब मैं बाद में कभी मेरे करियर में पेरोल में काम करना चाहती हूँ. मतलब like I should be working in every segments of, like I would like to work in every segments of HR domain. तो क्योंकि वो मैंने पढ़ के भी आया है थोड़ा सा, तो इसीलिए मुझको लगा कि मैं काम करना चाहती हूँ. सो और वो एक पॉइंट था. और जब ये मुझको रियलाइज हुआ तो 2020 मैं जब एक्चुअली आईएम में पढ़ती थी तो तभी मैंने आई4 बेस्ड के बारे में मेरे लिंक्डइन में मैंने देखा था, ओके. लिंक्डइन में. ओके. तो और उसके वैसे मैं आपको उसके बता बाद दूं, तो आईएम से हाँ मेरे हाँ. पास कुछ स्टूडेंट्स पहले भी ट्रेनिंग कर चुके हैं अच्छा और ये अच्छा वहां अच्छा से आ चुके हैं और वहां से ट्रेनिंग कर चुके हैं आईएम से. और अच्छा. जब मैं वहां आपका देखा आईएम से आप, तो मुझे रिकॉल हुआ पुराने स्टूडेंट्स के बारे में, मेरे को जहन में आया सारी बातें. तो दिस इज द दैट इंस्टीट्यूट. वहां से मैं एक पुराना रिलेशन अच्छा है वहां के स्टूडेंट से हमारा. तो वन थिंग पहले भी वहां से आ चुके हैं काफी स्टूडेंट्स. और वन थिंग अच्छा शायद, अच्छा अच्छा ये मैं यहाँ पे एक चीज मैं यहाँ पे थोड़ा क्लियर करना अच्छा. चाहता हूँ आपके इंटरेक्शन से. व्यूअर्स, वन थिंग्स हाँ हाँ दैट वेरी क्लियरली सी हाँ टोल्ड अबाउट, इन्होंने एक चीज बताया यहाँ पे, जो आप पेरोल का ट्रेनिंग, बहुत सारे लोग बोलते हैं रिक्रूटमेंट्स का कुछ काम कर लो उसके बाद पेरोल सीखें. राइट. कुछ कुछ लोगों के जहन में ये भी चलता है जो नहीं, बिगनिंग स्टेज में ही मुझे पेरोल भी सीख लेनी है. अब ये यहाँ पे क्लियर हो गया, जो कि शी इज अ वर्किंग प्रोफेशनल राइट नाउ, शी इज वर्किंग एंड शी इज रियलाइजिंग एंड दैट थिंग शी इज टेलिंग यू. तो सो वन थिंग इज वेरी क्लियर दैट इन्होंने बताया जो पेरोल का भी नॉलेज अगर आपके पास होता है तो दैट वुड बी फाइन, क्योंकि आप रिक्रूटमेंट्स में बहुत सारी चीजें पेरोल से रिलेटेड मैनेज करते हो, जैसे पीएफ हो, ईएसआई हो, ग्रेच्युटी हो, सीटीसी डिजाइन करना हो. तो ये सब भी कुछ पार्ट है पेरोल का जो आपको करना पड़ता है. तो कहीं ना कहीं आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा. और हाँ, आप आगे पेरोल का कैरियर भी सेट करते तो उसके लिए भी आपके लिए सही रहेगा. तो मेरे समझ से दीदी आप ये बताना चाह रहे हैं, अगर कोई प्रोफेशनल एचआर में काम करना चाहिए, अगर पेरोल की भी नॉलेज उनके पास काफी शुरू से अगर रहे तो और अच्छी बात है. इज इट? हाँ सर, अगर शुरू से रहे तो फिर तो वो एक प्लस पॉइंट होता है प्लस कि पॉइंट आपको होगा. पहले से ही उस चीज का समझ है कि कैसे ये होता है. तो और तो ये दैट वुड बी अ वेरी बिग प्लस पॉइंट फॉर दैट पर्सन. थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन. तो ये दीदी आपने बहुत अच्छी बात बताई. अब मैं दीदी नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं पूछने जा रहा हूँ. हमारे पास टाइम 9 हो गए हैं और अभी हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है, यू नो दैट, थोड़ा टाइम कॉन्स्टेंट है हमारे लिए. और हाँ सर. एक एक जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छा आपसे पूछ रहा हूँ, जो आप ये बताइए मुझे, आप जब पेरोल कोर्स के लिए तो अब आप डिसाइड कर लिए, कैरियर चूज भी की, आई फॉर बेस्ट में आप कैसे आई और कैसा आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे अभी है आई फॉर बेस्ट में ट्रेनिंग प्रोग्राम का? प्लीज टेल मी अबाउट दिस. मैं डिसाइड किया कि मैं आई4 बेस में ज्वाइन करूँगी. उसके बाद मैंने उन लोगों से कांटेक्ट किया, मैं ज्वाइन की. और मेरा एक्सपीरियंस अभी तक तो बहुत ही अच्छा रहा. और मुझको बहुत सारा चीज़ सीखने को मिला जो
मतलब बहुत इंट्री केसेस मुझको समझने को मिला, जैसे कि असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, जो सब हम लोग को लगता है कि सिर्फ ऊपर ऊपर से ईएसआई, पीएफ, ग्रेचुइटी, मेडिकल ये Yes. सब समझने से ही हो जाता है, पर बहुत कुछ है इसमें, जैसे कि टीडीएस कैलकुलेशन, जो हम लोगों को मुझको तो पता ही नहीं था कि ये एचआर के पेरोल में भी आता है टीडीएस कैलकुलेशन। मुझको लगता था कि सिर्फ अकाउंट्स के लोग ही करते हैं टीडीएस कैलकुलेशन। सो ऐसा बहुत सारा चीज़ है जो मुझको जानने को मिला। और तीसरी बात ये है कि जब भी मुझको कोई भी कन्फ्यूजन होता था क्लास में, तो मैं सर से हमेशा पूछती थी, और सर हमेशा विदाउट एनी काइंड ऑफ इरिटेशन वो हमेशा हम लोगों को समझा देते थे कि वो कैसे होगा, और कहाँ पे हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो पॉइंट क्लियर कर देना। और फोर्थ पॉइंट जो मुझको बहुत अच्छा लगा वो था कि पीएफ और ईएसआई का वर्कशॉप जो हम लोगों को लास्ट डे हम लोग अटेंड किए, क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अलग होता है। Correct. तो इसीलिए जो प्रैक्टिकल नॉलेज हम लोगों को मिला, वो हम लोग जो पेरोल में नहीं काम किए हैं, हम लोग के लिए ईएसआई, पीएफ, ये सब वेबसाइट का जो इंटरफेस है, ये सब चीज़ हम लोग के लिए बहुत नया है। तो हम लोग जब भी इन फ्यूचर जब भी ईएसआई या फिर पीएफ हम लोग करेंगे, हम लोग को पहले से ही पता होगा, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी कोर्स में हम लोगों को ये प्रैक्टिकल जो सिनेरियो है हम लोग को दिखाया गया है। तो Okay. ये जो 4 पॉइंट्स है, मतलब ये बहुत ही मेरे लिए तो वैल्यूएबल है पेरोल के कोर्स में। सर आपने बहुत ही अच्छी तरह से हम लोगों को पढ़ाया है। मैं बोलूँगी कि यू हैव टीच्ड अस रियली वेल, क्योंकि आप हम लोग के लिए टीचर ही हो। तो आप हम लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। और लाइक एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट आप जब भी कुछ लेसन को आप एक्सप्लेन करते हो, आप हमेशा हम लोग को पूछ के कंफर्म कर लेते हो कि हम लोगों को कहीं पे डाउट तो नहीं है, हम लोग को पूरा समझ में तो आया है। उसके बाद ही आप नेक्स्ट लेसन में जंप करते हो। आप कभी भी हरी नहीं किए हो कि नहीं आज ये 2 टॉपिक मुझको करवाना ही है, तो मैं एक टॉपिक हो गया मैं दूसरे टॉपिक में चले जाता हूँ, इन लोगों को समझ में नहीं आने से भी चलेगा। तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो आप कभी ऐसे जंप नहीं किए हो, आप कभी हरी नहीं किए हो, आप हमेशा एक टॉपिक को समझाते हो, और आप हम लोगों को पूछ लेते हो, कंफर्म कर लेते हो कि हम लोगों को ये टॉपिक पूरा समझ में आया है या नहीं। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी बिग क्वालिटी। एंड सेकंड जो आप में जो क्वालिटी है वो है कि आप कभी इरिटेट नहीं हुए हो। बहुत समय ऐसा हुआ है, जैसे कि टीडीएस कैलकुलेशन में या फिर लीव ट्रैवल अलाउंस जो हुआ था, उसमें हम लोग को समझने में थोड़ा दिक्कत हुआ कि इतना कुछ है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। पर आप हमेशा जहाँ पे जिस भी कैंडिडेट का जहाँ पे भी प्रॉब्लम हुआ है, आप हमेशा उन लोगों को वो चीज़ क्लियर करके देते थे, और आप हम लोग को होमवर्क भी देते थे समझने के लिए कि हम लोगों को वो चीज़ क्लियर हुआ है या नहीं। सो ये क्वालिटीज़ बहुत ही अच्छा है। Okay, okay, thank you. But thanks for giving your valuable time and wish you all the best for your future endeavors. Especially, I'm wishing you that you must get a prosperous success and fame and glory in future. So again, thank you for giving your time and joining this talk show. Thank So you viewers, you, this is sir. all about in the today's talk show. And now in future, we are going to come with another guest, especially our training. And she also, or he or she is going to share a lot of things to all of you. So if you like this video, then please subscribe our channel and share to others also, so that others also get benefited to get such information. So thanks everyone.